Okay, students, now I am going to teach you the rise of Islam in Arabic faith, community, and politics. So, when the Prophet Muhammad was born in 572 AD in Arab Peninsula, then at that time he was born in a very, you can say, in a very poor family, and after he was born, his mother died, and after some time, his father also died. So he was brought up by his uncle, who also died after some time when he was very young. So Prophet Muhammad, uh, he has to work in a very early age, and therefore he did not got the formal studies, the formal education, and he whatever he got the knowledge, he got through the his own meditation. He used to meditate. मतलब वो बचपन से ही उनका जो है काफ़ी मेडिटेशन में, ध्यान में काफ़ी उनका मन लगता था, ईश्वर में उनका काफ़ी मन लगता था. And he was born up in a Quraysh family. So at that time when Prophet Muhammad was born in Arab Peninsula, at that time Arab Peninsula was dominated by the, you can say, most of the Arab Peninsula was inhabited by the Bedouin tribes. They were the nomadic tribes, and they used to go from one place to another to sell their things, especially the things that were made from the animal products like camel. Camel was is known as the ship of the desert. So most of the things that the Bedouin tribes were selling to the other people of other countries, and even doing the inland trade, they were usually made of the animal products. So, uh, when Prophet Muhammad was born, he was born in a very poor family, and he was not literate because of his circumstances, as he did not have anyone to care about him. And but he himself was very much devoted towards the God, and he used to go to the isolated place for doing the meditation, and where he got the knowledge that he was sent by the God as a messenger of the God to teach the world that God is one, and that is Allah, and the all the devotees, they have to prayer to Allah only. So after getting knowledge, when he came back, and he started spreading the knowledge to his own to the people of Makkah. He was born in Makkah in Arab Peninsula. So at that time, Makkah was inhabited by these nomadic tribes, and the people of these tribes, they were having their own customs and beliefs. They were polytheist. Polytheist का मतलब वो कई सारे देवी देवताओं पर विश्वास करते थे, and each tribe has their own local deities, and they were also doing the idol worship यानी मूर्ति पूजा, and they were placing their idols in a holy shrine which is known as Kaaba, a black stone, a big black stone, which is in the placed in the middle of the Makkah. So that was considered as a holy shrine, and the people of Makkah, who were especially the rich merchants who were engaging in the who were engaged in the foreign trade, they were having their own local deities which were placed on the holy shrine, and these Quraysh, who were also the tribal people of Makkah, their work was to look after these holy shrines, these holy idols, the deities, the idols of these deities, and to see that no one breaks them, or they have to serve these idols. Okay, but Prophet Muhammad, who was also born in this Quraysh uh, clan, but he was totally against the idol worshipping, and worshipping the different deities.
was a monotheist, and he believed that God is only one, that is Allah, and he believed in a formless God, that is without shape. So he was totally against the idol worship. So now I'm going to read about it. So when he started preaching the people of Makkah that God is only one, and he is formless, and and idol worship should not be there, then his own tribal people turned against him, that is the Qurayshis, and they wanted to kill them. Okay, kill him. And so he, in order to save his life, uh, he, along with his disciples, he migrated to Medina. Okay, and this migration from Mecca to Medina is considered as a very holy for the people of Islam, and it is known as Hijra era. Okay, and for this they even started the Islamic calendar. Okay, the rise of Islam in Arab faith community and politics. During 612 to 32, the Prophet Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and the membership of a single community of believers, Ummah. Means Ummah were the community of members who believed in Islam and who believed in Allah. दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इसी तरह से इस्लाम का उदय हुआ। तो ये कह रहे हैं कि 612 से 632 में प्रॉफिट मोहम्मद ने इस चीज़ की मतलब ये दुनिया को बताया था कि ईश्वर एक है जो कि अल्लाह है, और इन्हीं की हमें जो है पूजा और उपासना करनी चाहिए। इनके प्रति हमारा जो है पूरा हमें शिद्दत से इनकी उपासना करनी चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने एक संप्रदाय को भी फॉर्म किया था जो कि इनके बताए हुए रास्ते पे चलते थे, जिसको कि उन्होंने इस्लाम कहा। और इस इस्लाम को मानने वाले लोगों को और जानकार लोगों को उम्मा कहा गया। और ये इसी तरह से इस्लाम का उदय हुआ। मोहम्मद वॉज एन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड अ मर्चेंट बाय प्रोफेशन। मोहम्मद साहब जो थे वो, क्योंकि अरब पेनिनसुला में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो जन्म से ही अरब थे, और पेशे से वो एक व्यापारी थे। 6th century Arab culture was largely confined to Arabian Peninsula and areas of southern Syria and Mesopotamia। तो छठी शताब्दी में, यानी इनका जन्म जो था वो 572 AD में हुआ था, यानी 6th century AD में। तब उस समय जो अरब पेनिनसुला था, वहाँ के लोग जो थे, उसमें केवल अरब पेनिनसुला भी नहीं था, बल्कि कुछ क्षेत्र जैसे कि सदर्न सीरिया और मेसोपोटामिया में भी एक जैसे ही संस्कृति चल रही थी। ये सारे अरब जो थे छोटे छोटे जनजातियों में बटे हुए थे, और जिसको कि कबीला कहा जाता था। और इन कबीलों में इनके एक जो है मुखिया होते थे, जो बेसिकली इन्हीं की फैमिली को बिलोंग करते थे। इस तरह से एक जनजाति का एक मुखिया होता था, और इस जनजाति के जितने भी सदस्य होते थे वो उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रक्त संबंध होता था, यानी कि ब्लड रिलेशन। और इनके और ये जो कबीले होते थे वो जो है अपनी खुद की ताकत और ज्ञान और उस पर जो है वो चलते थे, और ये अपने मुखिया को भी इसी तरह से सेलेक्ट करते थे कि जो भी सबसे ज़्यादा समझदार होता था और जो सबसे ज़्यादा अनुभवी होता था उसको वो मुखिया के रूप में चुनते थे। ज़्यादातर जितनी भी अरब ट्राइब्स थी वहाँ पे वो नोमैडिक थी, जैसे कि बेडुइन्स, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचने के लिए घूमती रहती थी, या फिर
फर्टाइल एरियाज़ के लिए, जिसको कि ओएसिस कहा जाता था। जिस समय ये जिस समय प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था, उस समय ये जो बेडुइन ट्राइब्स थी, ये पॉलीथिस्ट थी। मतलब इनका मानना था कि देवता के देवी या देवता जो इनके थे, इनके कई अवतार होते हैं, और ये एक देवी या देवता पर विश्वास न रख करके कई सारे देवी और देवता पे विश्वास रखते थे। यानी कि दे वर वर्शिपिंग, ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन गॉड एंड गॉडेस, एंड दे वर डूइंग द आइडल वर्शिप, यानी कि वो मूर्ति पूजा करते थे। सम सेटल्ड इन ओके। और ये जो है, ये जो है ज़्यादातर ओएसिस की तलाश में, जो कि अरब, क्योंकि एक डेजर्टेड एरिया था, इसका फिज़िकल इस तरह से लेआउट था कि पूरा अरब पेनिनसुला जो है एक डेजर्टेड एरिया है, और यहाँ पे कई कई जगह पे जहाँ पे पानी के स्रोत होते हैं, वहाँ पे ग्रीन एरिया डेवलप हो जाता है, जिसको कि ओएसिस कहते हैं। तो ये ओएसिस की तलाश में हमेशा एक जगह से जहाँ उनको पानी की पूरी सुविधा मिल सके, उनके और उनके पशुओं के लिए वो घूमते रहते थे अपने कबीले के साथ। सम सेटल्ड इन सिटीज़ एंड प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर। ज़्यादातर कुछ लोग जो थे वो शहरों में, जो अमीर व्यापारी थे वो शहरों में बस गए थे, और कुछ लोग जो है ओएसिस में रह कर के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। मोहम्मद साहब का खुद का जो अपनी जनजाति थी, उसको कुरैश कहते थे, जो कि मक्का में रहती थी, और वहाँ के पवित्र श्राइन को पूरी तरह से देखभाल करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कुरैश वंश की थी। कुरैशी लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल्ड द मेन श्राइन देयर, और ये श्राइन एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का था, दैट वाज ब्लैक इन कलर, कॉल्ड काबा, और उसको काबा कहा जाता था, जो कि मक्का के बीचों बीच स्थित था। इन काबा होली एंड इंस्टॉल्ड देयर ओन आइडल्स एट दिस श्राइन, और इसी पवित्र ऊंचे धार्मिक स्थल पर ये जो जनजाति लोग थे, वो अपने अपने कुल देवी और देवता की मूर्तियां स्थापित करते थे। और जो कुरैशी वंश के लोग थे, उनकी कर्तव्य होता था, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि इन देवी देवताओं की देखभाल और इनकी पूरी तरीके से सेवा करना। Makkah was located on the crossroads of the of a trade route between यमन एंड सीरिया। मक्का जो है वो सीरिया और यमन के बीच में जो सड़कें जाती थी, जो कि एक दूसरे को काटती थी, उनके बीच में स्थित था। The Makkan Shrine, which further enhanced the city importance. The Makkan Shrine was a sanctuary haram where violence was forbidden, and nomadic and settled tribes तो ये कह रहे हैं कि मक्का जो है एक पवित्र धार्मिक स्थल था, जहाँ पर कि किसी भी तरह का हिंसा जो है पूरी तरीके से मना थी, और वहाँ पे हर लोगों को जो है, जो भी वहाँ पे आते थे यात्री, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाती थी। All pilgrimage and commerce gave the nomadic and settled tribe opportunities to communicate with one another and share their beliefs। और क्योंकि इस धार्मिक स्थल को में
जो है या धार्मिक स्थल को देखने के लिए, अपने धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग आते थे। तो जो यहाँ पे रहने वाले जो जनजाति लोग थे, नोमैडिक ट्राइब्स थे, उनका जो है वैचारिक आदान प्रदान इनके साथ होता था और इस तरह से इनको काफ़ी अच्छा अवसर मिलता था कि वो एक दूसरे के धर्म के बारे में जानें और समझें। Although the polytheist Arabs were vaguely familiar with the notion of the supreme God, Allah, possibly under the influence of the Jewish and Christian tribes living in their midst, their attachment to idols and shrines was more immediate and stronger. तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को, जो कि वहाँ के अरब पेनिनसुला के लोग थे, जो कि ज़्यादातर पॉलीथिस्ट थे, जो अलग अलग देवी देवताओं पर विश्वास रखते थे, उनके लिए एक ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, ये उनके लिए समझना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उस समय जो अन्य धर्म के लोग थे, जैसे ज्यूइश और क्रिश्चियंस, उनके लिए ऑलरेडी उन्होंने ईश्वर को एक ही माना था, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी आसान थी ये समझना। Around 612, Muhammad declared himself to be the messenger of God, और 612 में मोहम्मद साहब ने अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ दूत जो है डिक्लेयर कर दिया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि who had been commanded to preach that Allah alone should be worshipped, और इन्होंने दुनिया को ये बताया था कि केवल अल्लाह की ही जो है हमें पूरे दिल से पूजा और उपासना करनी चाहिए, मतलब नमाज अदा करनी चाहिए, उन पे अपनी पूरी आसक्ति रखनी चाहिए। Muhammad was to be found a community of believers उम्मा, और मोहम्मद साहब ने इस तरह का उनके बताए गए रास्तों को मानने वाले लोगों का एक समूह बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, जिसको कि उन्होंने एक संप्रदाय का नाम दिया, जिसको कि इस उनके बताए हुए रास्ते में चलने वाले लोगों को इस्लाम कहा गया। The community would bear witness शहादा to the existence, और ये जो मोहम्मद साहब थे, इनका ये कहना था कि जो हमने अपने समय में जो समूह बनाया, जो कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, इनको मानने वाले लोगों की जो कम्युनिटी को अपनी आँखों से देख रहे हैं, उसको शहादा कहा गया। ठीक है ना। Okay, the community would bear witness shahada to the existence of the religion before God, as well as before members of other religious communities. Muhammad's message particularly appealed to those who were looking for a new community identity. और मोहम्मद ने जो ये अपना लोगों को जो ये अपना मैसेज फैलाया था, मतलब उन्होंने जो अपने विचारों को जो स्प्रेड किया था कि अल्लाह एक है और इनका कोई आकार नहीं है, निराकार हैं, और ये जो मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ थे, तो इससे जो दूसरे नोमैडिक ट्राइब से जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, अपने समाज में एक जगह चाहते थे, उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और उन्होंने इस धर्म को, इस संप्रदाय को, उनके बताए हुए रास्ते को कबूल किया, और उन सबको मुस्लिम्स कहा गया। They were promised salvation on the day of judgment, क़यामा, and a share of the resources of community while on earth। और इसके बदले में प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको इस चीज़ के लिए मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको प्रॉमिस किया, उनसे ये वादा किया कि अगर वो हमारे संप्रदाय में आते हैं तो उनको जो है
जब भी जिस दिन न्याय का दिन होगा उनकी मृत्यु के उपरांत, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और साथ में जब तक वो जीवित रहेंगे तो उनको संसाधन जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। The Muslims soon faced considerable opposition from affluent Meccans who took offense to the rejection of their deities and found the new religion a threat to the status and prosperity of Mecca। लेकिन जो मुस्लिम्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ के पॉलिथिस्ट लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो नया धर्म है ये उनके पहले से ही जो धर्म ऑलरेडी चल रहा है, प्रचलित है, और जो देवी देवता हैं उनके लिए एक ये जो है खतरा है। In 622, Muhammad was forced to माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना। और इसके डर की वजह से कि जो लोग उनके विरोधी हो गए, ख़ास तौर से उनके खुद के वंश के लोग जिनका काम था इन देवी देवताओं की रक्षा करना, तो जब उनकी जान को ख़तरा हो गया तो वो अपने अनुयायियों के साथ जो है वो मदीना की तरफ चले गए। और इस तरह से जो मोहम्मद की जो यात्रा थी मक्का से लेकर के मदीना तक की, उसको हिजरा या एक टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कहा गया इस्लाम में, विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना मार्किंग द बिगनिंग एट द मुस्लिम कैलेंडर। इस तरह से इस हिजरा इरा को जो है मदीना का इस तरह से हिजरा इरा को एक मार्किंग आ गया मुस्लिम कैलेंडर में। ओके।